Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. So I am here with you with the new video and the continue video for class 9 chapter 7 diversity of living organism, and this is the part 2 video in which we will discuss about many things, that is echinodermata, chordata, protochordata, vertebrata, and invertebrata. We will also see its classification like piscis, amphibia, reptilia, aves and mammalia. Okay students, so on the basis of notochord, its type of bony structure that is given in this fish image, you can see on the basis of notochord there are three classification in which we will study about two, that is echinodermata and chordata. In chordata it is again classified into two types. If notochord is present in very least form, then it's known as protochordata, and if notochord is replaced by vertebral column. Now students, if you remember what is the meaning of vertebral column is, it's a part which protects our spinal cord. Okay, so if in adults notochord is replaced by vertebral column, then they are known as vertebrata. Okay, and in vertebrata there are again five parts, that is piscis, if there is a bone or cartilage, if there is a lungs and organism breathes through lungs, then it's known as amphibians. If the organism lays eggs outside the water, they are known as reptilians. If the organism lays eggs and they have feathers, they are known as aves, means birds, right? And if the exoskeleton of hair has external ears, mostly give birth to young ones, they are known as mammalia. Okay students? Now students, what is the meaning of exoskeleton consisting bone, lungs, laying eggs? So exoskeleton is nothing but the external skeleton in which the human body organs are there and a body gets support, that is known as exoskeleton, that I have mentioned over here. Okay students, so this is exoskeleton structure of an organism. So now let's start with echinodermata topic. So echinodermata is itself divided into two parts, that is echino and dermata. Okay students, so echino stands for hedgehog. So you can see the layer of hedgehog is like rough layer, and derma means skin. So an organism which are made of hedgehog skin is an organism. Okay students? Okay, let's proceed further. Who are they? They are spiny skinned organism. मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो स्पिन लगाते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मेरीन, मतलब वाटर में रहने वाले हैं ये एनिमल्स। ट्रिप्लोबेस्टिक, मतलब तीन लेयर्स होंगे, थ्री लेयर्स ऑफ स्किन, थ्री लेयर्स ऑफ स्किन। ओके स्टूडेंट्स, दे हैव अ कोइलमिक कैविटी, मतलब कोइलम होने वाला है, जो कैविटी जो इंटेस्टाइन और बॉडी वॉल के बीच में होती है। याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो देखिए। दे हैव ए पेक्यूलियर स्पेसिफिक वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज फॉर मूविंग अराउंड। उनके अंदर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण पानी अंदर आएगा, पानी के प्रेशर के कारण उनके बॉडी को मूवमेंट मिलेगा और उसके बॉडी के मूवमेंट से उनका बॉडी है वो आगे जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स दैट यूजेस अ स्केलेटन। तो उनके जो स्केलेटन्स होते हैं, जो बोन्स होते हैं, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, CaCO3 से बने होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल क्या है? स्टारफिश, सी अर्किन्स, और ये मैंने स्टारफिश और सी अर्किन्स दिखाए हैं। ये स्टारफिश है और ये भी स्टारफिश है। Okay, now let's move to the next topic, that is protochordata. So protochordata is, students, bilaterally symmetrical, means if you are making one axis, then it will be divided into two equal halves, that is known as bilateral symmetrical. They are having three layers of skin, three layers of membrane. They have a coelom cavity in it. New feature of body design, namely a notochord, at least at some stages during their lives.
सम स्टेजेस मतलब स्टूडेंट्स पूरे लाइफ फेज में नहीं होगा, थोड़ी उम्र में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, थोड़ी उम्र में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। और हाँ, ये फिगर जो है वो आपको ड्रॉ करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए रखी हुई है। नोटोकॉर्ड इज लॉन्ग रोड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर, तो आपको मैंने नोटोकॉर्ड है उसका एक एग्जाम्पल ही दिखाया है जिसका नाम है प्रोटोकॉर्डेटा। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, एक धागा जैसा एक बड़ा सा लेंथी स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। दैट रन्स अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू को गट से अलग करने वाला नोटोकॉर्ड होता है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर द मसल्स टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मसल्स है वो स्टिक होते हैं, जिसके कारण पूरे बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये कहाँ पे होता है? नर्वस सिस्टम और हमारे बॉडी के गट के बीच में, ठीक है। इसका काम क्या होता है? नोटोकॉर्ड है वो मसल को एक प्लेस देता है जिसके कारण मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और जिसके कारण हमारे बॉडी भी फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये नोटोकॉर्ड है वो जनरली हमारे में नहीं होता है, मेरीन एनिमल्स में होता है, सो दे आर फाउंड इन मेरीन एनिमल्स। प्रोटोकॉर्डेट्स may not have a proper नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट ऑल द स्टेजेस। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि नोटोकॉर्ड एक पार्ट है जो प्रोटोकॉर्डेट्स में होते हैं, तो वो पूरे लाइफ फेज में नहीं होंगे, कई यंग एज में हो सकते हैं तो ओल्ड एज में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। पूरा एक लाइफ स्पेन है, सभी लाइफ साइकिल में नहीं होने वाले हैं। इन द एंड फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ एनिमल, और हाँ ये भी है कि पूरे बॉडी में नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी जगह पे ही होगा, ठीक है। नोटोकॉर्ड मतलब 2 पॉइंट हमें इसमें से समझ में आया कि नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ टाइम में नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, एक एनिमल में नोटोकॉर्ड अगर होगा तो सभी पार्ट में नहीं होगा, थोड़े थोड़े पार्ट में हो सकता है, ठीक है। और ये मेरीन एनिमल्स मतलब सी में और वहाँ पे मिलेंगे। एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स इसके? बेलेंग्लोसस, हर्टेमेनिया एंड एम्फियोक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे आपको प्रोटोकॉर्डेटा का एक एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया है जो बेलेंग्लोसस है, ठीक है। दूसरा उसका एग्जाम्पल ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है आपके एग्जैक्टली राइट हैंड साइड में है, इसका नाम है हर्टेमेनिया, ओके स्टूडेंट्स। एंड द फिश लाइक स्ट्रक्चर दैट यू आर सीइंग below, that is amphioxus, okay students. So you can see in amphioxus notochord is present, okay, and these all animals are marine animals. Now let's move to the next page. So you can see students, the chordates have essential features like they have all notochord, they have dorsal nerve cord मतलब जो नर्वस टिश्यू से बनता है पर स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है, मतलब नोटोकॉर्ड के साथ जो नर्वस टिश्यू अटैच होता है उसको डोर्सल नर्व कॉर्ड बोलते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे हैव पेयर्ड गिल पाउचेस, पेयर्ड का मतलब 2 गिल पाउचेस होने वाले हैं, ठीक है। पेयर गिल पाउचेस, पाउचेस मतलब एक बैग जैसा स्ट्रक्चर में 2 गिल्स होंगे जिससे वो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो अच्छे से कर पाए। दे हैव कोलोमेट, ओके, इसके पास कोलोमेट नहीं, कोलोमेट मतलब कोलम होगा, ट्रू कोलम प्रेजेंट होगा, कैविटी होगी जो इंटेस्टाइन और स्टोमक बॉडी के वॉल के बीच में होती है। तो स्टूडेंट्स आगे जाएंगे हम वर्टिब्रेटा के ऊपर। वर्टिब्रेटा से थोड़े बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे बहुत फेमिलियर है, आप देखोगे। दिस एनिमल्स हैव ट्रू वर्टिब्रल कॉलम, इनके पास एक अच्छी सी वर्टिब्रल कॉलम होती है, आप देख सकते हो, राइट। सो दिस इज अ वर्टिब्रेटा, राइट, द सर्पेनेंट्स एंड इंटरनल स्केलेटन अलाउइंग ए कंप्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल अटैचमेंट टू बी यूज्ड फॉर मूवमेंट। इसीलिए इनका मसल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही स्पेशल वे से होता है जिसके कारण उसको बॉडी में अच्छी मूवमेंट्स मिल सकती है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, दे ऑल्सो हैव 3 लेयर्स, दे हैव कोइलेमिक कैविटी एंड दे आर सेगमेंटेड, मतलब कि पार्ट्स अलग अलग होते हैं, आप देख सकते हो ब्रेन का पार्ट अलग, यहाँ से पूरा स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट अलग, वर्टिब्रेटा मतलब उसमें सेगमेंट्स होते हैं जिससे सभी ऑर्गन्स है वो डिफरेंशिएट हो पाए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, इनके बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं उसका सेपरेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आगे जाएंगे। वर्टिब्रेट्स हैं वो 5 अलग ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं।
वह जो आता है वो है पिस्किस। पिस्किस का मतलब होता है फिश। पिस्किस एक राशि भी है जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बोला जाता है। पिस्किस का मतलब होता है मछली, ठीक है। मछली जल की रानी है, ठीक है, जीवन उसका पानी है, वही वाली मछली है ये। एक्सक्लूसिवली वाटर लिविंग एनिमल्स। स्किन इज कवर्ड विथ स्केल्स और प्लेट्स। तो ये जो आपको दिख रही है वो स्केल्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर बाय गिल्स। वो ऑक्सीजन पानी में से ही लेते हैं। कौन से पार्ट से लेते हैं, याद रखना स्टूडेंट्स, गिल्स, ठीक है। बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है, वाटर को कट करता है। वाटर को कट करते हुए इनका बॉडी है वो आगे बढ़ता है। स्ट्रीमलाइन का मतलब ये है, इट विल कट द वाटर सो दे कैन float in water. And a muscular tail is used for movement. So this is the tail, as you all know. This is the fins, right? And gills is like here. This is gills, okay? तो ये है पूरा मछली का स्ट्रक्चर। They are cold blooded students. They are cold blooded. मतलब इनके ब्लड का टेम्परेचर जो है वो बहुत वार्म नहीं होगा, कोल्ड होगा। क्यों? क्योंकि उनके हार्ट है वो दो चैम्बर में बटे होते हैं। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये पूरा हार्ट है वो दो चैम्बर में बटा हुआ है। एक रेड कलर की चैम्बर है पूरी, आप ऊपर की तरफ देख सकते हो। नीचे की जो चैम्बर है वो पूरी रेड कलर से बनी होती है। तो जो रेड कलर से जो ब्लड दिखाया है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ठीक है। और हार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे है, ठीक है, ब्लू कलर की वेन से। और जो ये ब्लू कलर का ब्लड है स्टूडेंट्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ओके। जनरली स्टूडेंट्स हमारे ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, इसलिए हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोले जाते हैं। इसमें कोल्ड ब्लडेड इसलिए क्योंकि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। डबल सर्कुलेशन ह्यूमंस में होता है, इसमें एक ही बार ब्लड सर्कुलेट होता है चैम्बर में से, इसलिए इसके ब्लड का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं होता है। दे ले एग्स, ओके, अंडे छोड़ते हैं। सम फिश हैव स्केलेटन्स मेड एंटायरली ऑफ कार्टिलेज सच एज शार्क एंड सम हैव स्केलेटन बोथ बोन एंड कार्टिलेज सच एज ट्यूना एंड रोहू। तो फिश के भी प्रकार होते हैं, कार्टिलेज, ट्यूना और रोहू। जो फिश के अंदर पूरा स्केलेटन से बॉडी बना होता है एक फिश ऐसी, तो उसको शार्क बोलते हैं। और बोन और कार्टिलेज से पूरी जो फिश बनती है उसका नाम है टूना और रोहू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सभी फिश मैंने यहाँ पे दिखा दी है, टूना, रोहू, कार्टिल जो भी है, ठीक है। ये रही रोहू, ठीक है। तो आप देख सकते हो सभी फिश का एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिए हैं। आगे जाएंगे स्टूडेंट्स, सॉरी। एम्फीबिया जो है वो भी वर्टिब्रेट्स का सेकंड क्लासिफिकेशन में आते हैं। इनके अंदर स्केल्स नहीं होता है, जैसे फिश में ऐसा स्ट्रक्चर था वैसा नहीं होता है, ठीक है। दे हैव म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन, मतलब कि ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होने वाले हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। आप सबको मालूम ही होगा ऑयल या स्टिकी लेयर। कोल्ड ब्लडेड है 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इसमें 3 चैम्बर वाला हार्ट होता है। जैसे फिश में 2 चैम्बर वाला हार्ट था, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर वाला हार्ट होता है। रेस्पिरेशन गिल से हो सकता है या लंग से हो सकता है, ठीक है। दे ले एग्स इन वाटर, ये भी अपने अंडे है वो पानी के अंदर छोड़ते हैं। दीज एनिमल आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, जैसे कि फ्रॉग, ठीक है। ये फ्रॉग जो है वो पानी में भी मिलते हैं, लैंड में भी मिलते हैं। कई सारे स्नेक्स भी ऐसे होते हैं। एग्जाम्पल है फ्रॉग, टोड्स एंड सैलमेंडर, सभी के एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे होंगे। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आते हैं जिसका नाम है रेप्टिलियंस। क्या नाम है स्टूडेंट्स? रेप्टिलियंस। दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे हैव स्केल्स इन देयर बॉडी, यू कैन सी। इसके ऊपर भी ऐसे स्केल्स हैं, ठीक है, थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ब्रीथ थ्रू लंग्स, बॉडी के ऊपर स्टूडेंट्स थोड़ी भी पैटर्न हो तो उसको हम स्केल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये स्केल्स जो होती है उसके कारण उनको पानी में मूवमेंट मिल सकती है। ये भी ब्रीथिंग है वो लंग्स से करेंगे। इसमें भी 3 चैम्बर वाला हार्ट होता है। फिर क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। ये लोग भी जो एग्स हैं उसके ऊपर टफ कवरिंग होता है और पानी में इसके एग्स हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं रेप्टिलियंस के। एंड
सॉरी, इनके एग्स है वो पानी में नहीं होते हैं, सॉरी। और इनके एग्जाम्पल्स हैं स्नेक्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, इसके बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, ये ब्रीथिंग सांस लेते हैं लंग्स से। इनमें 3 चैम्बर वाले हार्ट होते हैं, सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़कर। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। इनके एग्स है उसके ऊपर जो कवरिंग्स है वो टफ होती है और ये कभी भी अपने एग्स है वो पानी में नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं एव्स। तो एव्स है उसमें बर्ड्स की पूरी वैरायटी आ जाती है। देयर इज एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फीदर्स एज यू ऑल नो, जिसे हम पाख बोलते हैं, ऑन द बॉडी एंड 2 forelimbs आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। 2 forelimbs भी होते हैं राइट और लेफ्ट साइड, जिसके कारण वो उड़ सके, फ्लाइट ले सके। वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोला जाता है और इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। स्टूडेंट्स, जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होगा उनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, याद रखना स्टूडेंट्स। देयर ले एग्स विथ हार्ड कवरिंग, इनके एग्स के ऊपर का कवरिंग भी बहुत हार्ड होता है। ये भी लंग्स से सांस लेते हैं, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। सभी बर्ड्स है वो यही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे जाएंगे मेमेलिया वाली कैटेगरी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, वो मेमेलिया है वो उनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोला जाता है, जिनके पास 4 चैम्बर वाले हार्ट होते हैं। जो फीमेल्स होती है मेमेलिया, हम मेमेलिया वाली कैटेगरी में आते हैं, पहले से बता देता हूँ। फीमेल्स ऑफ दिस कैटेगरी हैव मेमरी ग्लैंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश देयर यंग वंस। तो फीमेल के बॉडी के अंदर मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण यंग वंस है वो नरिश हो पाते हैं। देयर स्किन हैज हेयर एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, जैसे हमारे बॉडी में भी होते हैं हेयर, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स। ठीक है, जो प्यूबर्टी में ज़्यादा डेवलप होते हैं। मोस्ट मेमेलियंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट, जो बर्थ देते हैं यंग वंस को, जिसको विविपोरस बोला जाता है स्टूडेंट। हाउएवर few of them like the platypus and echina lay eggs. some of the animals lay eggs, ये आपने स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में भी पढ़ लिया है। जो भी एनिमल्स है वो एग्स छोड़ते हैं उसको ओविपोरस बोला जाता है। एंड सम लाइक kangaroos give birth to very poorly developed young ones। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसमें काउ डॉग, व्हेल, ह्यूमंस, बैट, रैट एंड लायन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेमेलियंस में हम आते हैं, जो एग्स छोड़ते हैं उसको बोलता है विविपोरस, और जो एग्स नहीं छोड़ते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं, उनको बोलते हैं विविपोरस। ठीक है, और जो एग्स ले करते हैं उनको बोलते हैं ओविपोरस। आगे जाते हैं स्टूडेंट्स नोमेनक्लेचर के ऊपर, जो है लास्ट टॉपिक ये चैप्टर का। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिकली फॉर दिस चैप्टर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग, और ये चैप्टर के हिसाब से नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल स्पीकिंग और राइटिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस टू नो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब भी कोई एक व्यक्ति एक ऑर्गेनिज्म के प्रकार के बारे में बोलना चाहता है तो उनको परेशानी होती है। The problem is resolved by agreeing upon a scientific name for organisms, just like a chemical symbols and formula for various substance in the world। जैसे हम सभी केमिकल सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला लर्न करते हैं, आप सबको मालूम है, कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O, तो बहुत इजी रहता है। सेम वे नेमिंग ये सभी एनिमल्स का भी किया गया है। द साइंटिफिक नेम फॉर एन ऑर्गेनिज्म इज यूनिक एंड कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इसीलिए इनको एक साइंटिफिक नेम दिया गया है, जिसके कारण पूरे दुनिया में वो ऑर्गेनिज्म मिले तो उसको इजीली आइडेंटिफाइड किया जाए। और ये किसने बोला था? कैरोलस लिनियस ने बोला था। किसने बोला था? कैरोलस लिनियस ने। आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उन्होंने क्या बोला था? द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विच पुट इट अलॉन्ग विद द ऑर्गेनिज्म इट इज मोस्ट रिलेटेड टू। तो स्टूडेंट्स, जो साइंटिफिक नेम है वो प्रोसेस कैसे चलती है कि वो ऑर्गेनिज्म किससे रिलेटेड है, मतलब कि उसके एंसेस्टर्स कौन है, इसके हिसाब से उसका डिवीजन होता है। इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ जीनस एंड द स्पीसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनस? जीन, वो कौन से जीन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और वो कौन सी प्रजाति से आते हैं, ठीक है, उसको स्पीसीज बोलते हैं। बोथ दिस नेम आर यूज्ड इन अ लैटिन फॉर्म। नेम ऑफ जीनस, जो जीन से बिलोंग करते हैं, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं होमोसेपियंस से ह्यूमन नाम हुआ है, तो HOMO इज द जीन नेम और जीनस नेम, एंड स्पीसीज सेपियंस
ओके, तो होमो सेपियंस, तो होमो है इसमें क्या है, जीनस, और स्पीसीज मतलब सेपियंस। समझ में आया? द नेम ऑफ द स्पीसीज बिगिंस विथ स्मॉल लेटर, तो आप देख सकते हो होमो है उसको पहले इटैलिक में लिखा जाता है, मतलब ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है, और सेपियंस है उसको इटैलिक में लिखने की जरूरत नहीं है और स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। देखा स्टूडेंट्स, तो ये है होमो सेपियंस लिखा हुआ। आगे जाते हैं। व्हेन प्रिंटेड, अगर यही नाम अगर आपको प्रिंट में देने हैं, अगर यही नाम आपको प्रिंट करवाने हैं तो साइंटिफिकली इसको आप इटैलिक आपको मालूम होगा, कंप्यूटर में ऐसा सिंबल आता है, ठीक है, मतलब कि थोड़े बहुत एंगल में मुड़े हुए, जैसे आपको दिख रहे होंगे, ये सब प्रिंटेड नेम है तो सभी इटैलिक में दिए गए हैं। बट व्हेन रिटन बाय हैंड द जीनस नेम एंड स्पीसीज हैव टू बी अंडरलाइंड सेपरेटली, तो जब भी मैं इसको लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मुझे इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, जीनस नेम को और स्पीसीज नेम को। तो स्टूडेंट समझ में आ गया नोमेनक्लेचर किसे बोला जाता है, जो एक साइंटिफिक नाम जीनस और स्पीसीज के नाम से बना हुआ होता है उसको नोमेनक्लेचर बोला जाता है। जिसका जीनस का पहला लेटर है वो कैपिटल होता है और वो पूरा इटैलिक हो जाता है, और स्पीसीज का नाम है वो जीनस से अटैच होता है और स्मॉल लेटर में होता है, ठीक है। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें कई सारे मैंने साइंटिफिक नेम दिए हैं। पैंथेरा टिग्रिस फॉर टाइगर, पेवो क्रिस्टेटस फॉर पिकॉक, सेम वे एंड का फॉर्मिसिडे, लोटस का नीलुम्बो न्यूसिफेरा, तो नीलुम्बो क्या है स्टूडेंट्स, उसका जीनस है, ठीक है, कौन सी स्पीसीज से बिलोंग होता है, न्यूसिफेरा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। ग्रे वॉल्फ के लिए कैनिस ल्यूपस, ओके, तो ऐसे सभी नाम हैं जिससे पूरे वर्ल्ड में ये एनिमल्स है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। स्टूडेंट्स बहुत सारे लैक्स में सभी अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका जीनस और स्पीसीज का नाम होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नोमेनक्लेचर है वो भी बहुत ज़रूरी है। होपफुली आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।